Hello children, let us start new chapter Diversity in Living Organisms. So we have discussed two chapters, fundamental unit of life, cell and tissues. Now we come to the organism, diversity in living organism. If we see that there is variety of living organism all around the earth, if we see the human beings, we see that no two human beings, they are identical. We have variations in height, in our complexion, in our nose shape, hair, eye color, etc. Then similarly, if we see the variety in the other living organism, we see some are too small like bacteria. There are few micrometers in size and we cannot see with the naked eyes. On the other hand, we see very large sized trees, banyan tree, then animals, elephant, whales, etc. Similarly, if we see the lifespan, again we see that some live for thousands of years, while some insects like mosquitoes die within a few days, and even some they die within few hours. Then if we see the variety of color, some organisms they are colorless, even transparent, and some they are brightly, beautifully colored. If we see the color of the animals, we see a great variety in the color. If we see the color of flowers, again we see a variety there. So, if we want to study each organism one by one, it's not possible. But if we look at the similarities among the organisms, then we can study this conveniently. So if these are arranged into different groups based on their similarities, then it is easier to study different groups as a whole. So that is why this grouping of the organism, that is known as classification. So किसी भी चीज की हम ग्रुपिंग करते हैं, that is known as a classification. चाहे हम अपने घर में चीज़ों की ग्रुपिंग करते हैं, हम बुक्स एक जगह रखते हैं, क्लोथ्स एक जगह रखते हैं, बर्तन एक जगह रखते हैं, दैट इज आल्सो ग्रुपिंग और द क्लासिफिकेशन. ठीक है, फिर हम उसके अंदर सब ग्रुप्स बना देते हैं. ठीक है, जैसे मान लो हमारी बुक्स ये हमने एक अलमीरा में रखी हैं, हम उसके अंदर सब ग्रुप्स बनाते हैं. एक तरफ हमारी टेक्स्ट बुक्स होती हैं, एंड देन हमारी रफ नोटबुक्स होती हैं, देन हमारी नोटबुक्स हैं, या फिर कुछ मैगजीन्स का कॉर्नर अलग से बना देते हैं, सो दैट इट इज़ ईजी टू वर्क विथ. चाहे हम अपने बर्तन रखते हैं या कपड़े रखते हैं, कुछ भी रखते हैं, हम एक बड़ा ग्रुप बना दिया. भाई किचन में हमने सारी खाने की चीज़ें रख दी, और देन वी मेक द सब ग्रुपिंग कि पल्सेस एक तरफ रखेंगे, स्पाइसेस एक तरफ रखेंगे, है ना. तो इस तरह से हम उनकी सब ग्रुपिंग करते हैं. द सेम इज विद द ऑर्गेनिज्म. तो हम इनके बड़े ग्रुप बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटीज, देन वी मेक डिफरेंट सब ग्रुप्स. So arranging of different organisms into different groups on the basis of their similarities in their characteristics is called classification of organisms. So what are the basis of classification of the living organism? अब हम डिफरेंट क्राइटेरिया सिमिलैरिटीज अगर हम देखें, तो मान लो अगर हम बोले कि दिस व्हेल, स्टारफिश, octopus, then seaweeds, eats, they all live in water. But if we say they are similar, they live in water, their habitat is water, but we see whale is completely different from the starfish, or it is completely different from the algae or the plants, seaweeds. So this cannot be a criteria for classification. Of course similarities हैं इन सब में, एक ही similarity है, that is habitat. तो इसको हम basis नहीं बना सकते, क्योंकि
इसमें तो बहुत सारी डिसिमिलैरिटीज हैं। इसी तरह से अगर कहें कि लैंड इज अ हैबिटेट, तो लैंड में तो कितनी तरह की ऑर्गेनिज्म है, टाइनी ऑर्गेनिज्म, छोटे छोटे वर्म से लेके बड़े बड़े एनिमल्स, बड़े बड़े प्लांट्स। तो कैन वी प्लेस देम इन द सिंगल ग्रुप जस्ट ऑन द बेसिस दैट दे ऑल हैव सेम हैबिटेट और द लैंड हैबिटेट? नो. So we must look for some fundamental characteristics. कुछ basic characteristics देखने होंगे जिसके बेस पे हम उनको क्लासिफिकेशन कर सकें. So सबसे पहले हम देखते हैं कि सेल की शेप. We see that some cells, हमने सेल वाले चैप्टर में पढ़ा, they are without nucleus. उनमें वेल ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस नहीं होता, लेकिन कुछ सेल्स में there is a definite nucleus. In some cells, there are present membrane-bound organelles. In others, these are not present. So that is the prokaryotic and eukaryotic cell. So this is the basic fundamental similarity. अगर वो प्रोकैरियोट है या यूकैरियोट है, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द सेल इट इज सेम, चाहे हम एक एलिफेंट का देखें या फिर एक इंसेक्ट का देखें. ठीक है, तो जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सेल बोथ आर यूकैरियोटिक. हालांकि इंसेक्ट और एलिफेंट में बहुत दूर का डिफरेंस है. तो एक क्राइटेरिया हम लेते हैं सेल स्ट्रक्चर, वेदर दे आर प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक. अब और हम क्या क्राइटेरिया ले सकते हैं? देन वी सी वेदर these cells they occur singly or they are grouped together and live as an indivisible group. So चाहे वो सिंगल यानी कि यूनिसेलुलर है और दे आर मल्टीसेलुलर. तो एक हम ये भी क्राइटेरिया लेते हैं, ले सकते हैं, दैट इज आल्सो अ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक. Then, whether they produce their own food by photosynthesis or get their food from the outside. Next criteria हम ले सकते हैं mode of nutrition. तो पहला हमने कहा कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, देन बॉडी ऑर्गेनाइजेशन कैसी है, देन मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है, वेदर इट इज फोटोसिंथेसिस और it or autotrophic or it is the heterotrophic. Then even the level of organization, अगर हम animals का देखते हैं तो level of organization it is different. They have some special organs and their special functions. So the characteristics used for classification of the plants will be different from the characteristics used for the classification of animals, because plants they are autotrophs and animals they are heterotrophs. Now classification is also linked with the evolution. Present day complex living organisms they have evolved from the simpler earlier forms due to changes in their body design over millions of years. आज हम जो ऑर्गेनिज्म देखते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले ऐसे नहीं थे. उनमें बहुत सारी स्लो स्टेडी चेंजेस हुए जिसको हम कहते हैं एवोल्यूशन. The body designs of living organism they are gradually changing due to the changes in the environment. And जैसे environment change होता है needs अलग हो जाती हैं organism से. According to that needs organism body design changes. लेकिन कुछ ऐसे भी groups हैं which still have ancient body design. They have not changed much during evolution. They have simple form and structure. These organisms they are called primitive or lower organisms. Some organisms they have acquired their body designs relatively recently. They are complex form. These are known as advanced or higher organisms. Just like bacteria हम कहते हैं lower organism. जैसा था उसमें वैसे कोई ज़्यादा चेंज नहीं आया प्रोकैरियोट. इसी तरह एनिमल्स में अगर हम देखें या बड़े प्लांट्स में देखें लॉट ऑफ चेंजेस. सो एडवांस्ड और हायर ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिजम्स
they have been broadly classified into 5 kingdoms. Now, क्लासिफिकेशन के लिए भी बहुत सारी रिसर्च चलती रही कि किस तरह से उनको क्लासीफाई किया जाए। पहले साइंटिस्ट ने सोचा कि इसको 2 उसमें क्लासीफाई कर देते हैं ग्रुप्स में, एक प्लांट्स, एक एनिमल्स। फिर उसमें बहुत सारे ड्रॉबैक्स नजर आए। जब प्लांट्स और एनिमल 2 ही ग्रुप बनाए थे अर्लियर, तो देखा कि बहुत सारे ऑर्गेनिज्म ऐसे हैं। फंजाई है, वो ना तो प्लांट की तरह है, मतलब ग्रो प्लांट की तरह करती है, लेकिन वो अपना फूड नहीं बना सकती। दैट इज अ एनिमल लाइक कैरेक्टर। तो उसको कहाँ रखें हम? प्लांटा में रखें, एनिमल में रखें? हालांकि पहले जब क्लासिफिकेशन की थी उसको प्लांट्स में ही रखा गया था। ऐसे बहुत सारे ड्रॉबैक्स थे इस तरह की क्लासिफिकेशन में जब 2 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन हुई। वेदर टू कीप दिस ऑर्गेनिज्म इन प्लांटा और इन द एनिमलिया। तो इस केस में क्या था, कि चाहे वो नो डिस्टिंक्शन बिटवीन यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर, नो डिस्टिंक्शन बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, बस अगर वो फूड बनाते हैं प्लांटा में रख दिया, अगर नहीं बनाते तो एनिमलिया में रख दिया, या मूव नहीं कर सकते तो प्लांटा में रख दिया, मूव करते हैं तो एनिमलिया में रख दिया। लेकिन बाद में इस ड्रॉबैक्स के कारण साइंटिस्ट ने फिर और तरीके अलग अलग मॉडिफिकेशंस की। तो आज प्रेजेंट डे में हम जो मोस्ट एक्सेप्टेड क्लासिफिकेशन है, दैट इज प्रपोज्ड बाय विटटेकर, WHITTAKER, विटटेकर ने क्लासिफिकेशन दी 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। तो 5 किंगडम्स कौन से हैं? मोनीरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटा एंड एनिमिलिया। फिर हर किंगडम को फर्दर क्लासिफाई किया हुआ है। अब जो है 5 जो किंगडम इन्होंने बनाए 3 क्राइटेरिया के बेसिस पे। कौन से क्राइटेरिया थे? पहला, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल, प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। दूसरा, कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ बॉडी, यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर। तीसरा जो था, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, वेदर दे आर प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स और कंज्यूमर्स। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन। फिर देखा उन्होंने कि सेल वॉल है या नहीं। तो इन बेसिक क्राइटेरिया के ऊपर ये जो है क्लासिफिकेशन 5 किंगडम की बेस की। ईच किंगडम हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू सब ग्रुप्स। किंगडम के बाद फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज। तो इसको बोलते हैं हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। तो स्मॉलर एंड स्मॉलर ग्रुप्स। तो बेसिक यूनिट क्या है? स्पीसीज। स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच आर सिमिलर, आपस में जो है वो सिमिलैरिटीज है, बट सिमिलैरिटीज तो पूरे किंगडम में ही है। फिर और क्या उसमें है? ज्यादा सिमिलैरिटीज है एंड दे कैन इंटरब्रीड विद ईच अदर, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं आपस में, इंटरब्रीड विद ईच अदर अंडर नेचुरल कंडीशंस टू प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग। तो उसको हम स्पीसीज कहते हैं। तो नोट करना इसको, थोड़ी सी ये अधूरी है ये। सिमिलर ऑर्गेनिज्म विच कैन interbreed with each other under natural conditions to produce fertile offspring। 4 चीजें मैंने बोली है। पहले सिमिलर ऑर्गेनिज्म, दूसरा इंटरब्रीडिंग विद ईच अदर, तीसरा नेचुरल कंडीशन, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल कंडीशन में नहीं, नेचुरल कंडीशन, चौथा ऑफस्प्रिंग्स आर फर्टाइल, तब हम उसको कहते हैं दे आर द मेंबर्स ऑफ वन स्पीसीज। सो प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट, पहला बेस किया प्रोकैरियोट और यूकैरियोट। तो प्रोकैरियोट उन्होंने रखा मोनीरा, उसको नाम दिया किंगडम मोनीरा। अब यूकैरियोट में 4 किंगडम, बाकी 5 किंगडम है ना, एक को रख दिया सेपरेट प्रोकैरियोट में और 4 को उन्होंने रखा यूकैरियोट। चारों में यूकैरियोटिक था, प्रोटिस्टा, प्लांटा, फंजाई, एनिमिलिया। अब 4 यूकैरियोटिक है, अब उनको कैसे सेपरेट करेंगे? फिर उसने सेकंड क्राइटेरिया लिया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि बॉडी स्ट्रक्चर, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर।
all unicellular placed under Protista, और जो मल्टी सेलुलर थे वो 3 ग्रुप में आ गए, फंजाई, प्लांटा, एनिमिलिया। प्रोटिस्टा जो थे वो यूनिसेलुलर। मल्टी सेलुलर में फिर से उन्होंने देखा कि वो कैसे हैं। अब सारे मल्टी सेलुलर है, सारे यूकैरियोट्स है, प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड फंजाई। फिर उन्होंने देखा कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, if they can make their food then they are planta, if they consume food then they are animalia, and if they are decomposer then they are फंजाई। यहाँ पे आपने यहाँ तक करना है, प्रोटिस्टा तक आपकी बुक में दिया हुआ है। और फिर ये तीनों, ये हम मल्टी सेलर, ये यहाँ पे भी क्यों दिखा दिए हैं, क्योंकि इसमें कुछ कुछ एक्सेप्शन है। कुछ फंजाई यूनिसेलर, अदरवाइज सारी मल्टी सेलर है। प्लांटा में भी कुछ एक एक्सेप्शन है, कुछ एल्गी यूनिसेलर, अदरवाइज दे आर मल्टी सेलर। सो नेक्स्ट टाइम वी विल डू डिटेल ऑफ ईच किंगडम। थैंक यू सो मच।